تعالی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی. کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں. گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں. لباس اور تلوار بھی؟ ہاں، اطاعت عالی جناب. تھوڑا سا آزاد سفر بھی. پھر عبادت کے لیے وہی ویرانی جگہ؟ کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے. شہنشاہ کی آمد سے پہلے خدا کی بارگاہ سے کوئی راہ حل تلاش کرنی ہوگی. اگر دقیانوس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں؟ کہہ دینا کہ رعیت کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے باہر دورے پہ گئے ہوئے. عالی جناب، یہ لیجیے. شکریہ گیلس. بیٹا، میری غیر حاضری میں اپنی ماں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. خدا خدا حافظ غالب. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا علی جناب. اس خطرناک صورت میں کیا ان کا جانا ضروری تھا؟ نہیں معلوم. آؤ جی آؤ، سستے داموں میں لے جاؤ. بھائی کتنے دام میں دے رہے ہیں؟ بھائی پہلے پسند تو کر لو. لے لو بھائی، لے لو، سستے داموں میں اچھی چیز. بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ بھائی پہلے پسند.
क्या कीमत है इसकी। वो देखो देखो बंदर ले जा रहा है। हाँ वो तमाशा लगा है, आप अच्छे हैं देख के। ऐसे और भी है तेरे पास? हाँ हाँ देखो तो सही, आपको साफ सही है, अच्छा माल है। हाँ मैं ये बर्तन कितने का है यार बताओ तो सही यार। आप पहले गाड़ी से पसंद कर लीजिए, दाम बता दीजिए, बात मुनासिब बताओ भी आपसे पसंद तो करें। और ये कितने का है नजर आ रहा है इसमें? मुझे यकीन है कि ये यहूदी जूलियस के लिए जासूसी करता है। मैक्सिमिलियन का पीछा कर रहा है। खुदाया, हर मोड़ पर तूने हमारी मदद की है। दुनिया के हर फराज व नशेब में तेरे इनायात ने हमें सहारा दिया है। मज़ाहिब के हुजूम में, राहों की भीड़ में तूने अपना रास्ता दिखाया है। आज भी हम तेरे सहारे के, तेरी हिदायत के मोहताज हैं। खुदाया, जुल्म व सितम के इस दौर में हम क्या करें? हमारा फरीज़ा क्या है? क्या खामोश रहें या कुछ करें तो क्या करें? ऐ जुल्मतों में शम्मे हिदायत जलाने वाले, ईसा इब्न मरियम का वास्ता, जिस राह में तेरी मर्जी हो
اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے۔ اے وہ جس کے الطاف و عنایات موز اور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی۔ خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا، کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا۔ خدایا کیسے، کب شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا، عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا۔ آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے۔ اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے، فی الحال صبر، اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو۔ جی حضور۔ ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا۔ دیناسس، اس کی خبر تو لو یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہے تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ۔ حضور مجھے آواز دے رہے ہیں۔ ہاں تمہیں؟ حضور میں کام سے جا رہا ہوں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو؟ کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ میں نے دیکھا کہ تم میکسیملین کا پیچھا کر رہے تھے۔ نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی میکسیملین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں۔ یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے۔ ارے حضور، میں تو جناب جولیس کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں۔ تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے 2 جگہ سے انعام لے سکتے ہو۔ کیا حرج؟ حرج تو کوئی نہیں حضور، بتاتا ہوں حضور، ضرور بتاؤں گا حضور۔ اس کا پیچھا انجلس کے پہاڑ تک کیا۔ انجلس؟ جی حضور، فلاڈیلفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے، وہ ایک غار کے اندر گیا۔ حضور میں نے ان کانوں سے سنا وہ عیسیٰ مسیح کی بات کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا۔ اور کیا بتا سکتا ہوں حضور؟ آہستہ بولو، کیا کہہ رہا تھا؟ خدا بند یکتا کے بارے میں۔ آہستہ بولو۔ مسیحی ہر جگہ ہے، اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا۔ اچھا حضور اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ بولو تم۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی جناب میکسیملین بھاگ جائیں گے؟ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، معلوم ہے کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں؟ وہ جو میں جانتا ہوں اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں۔ البتہ میں میکسیملین سے جھگڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم جانتے ہو کہ وہ
दकियानूस का दामाद और उसका खुसूसी मुशीर है और रूम में उसका मजबूत मुकाम। वो शख्स जो उससे टकरा सकता है वो जनाब जूलियस है जो उसके बराबर है। तो हुजूर, आप ये सारी खबरें जूलियस को क्यों नहीं देते? उस पर आपको रहम नहीं करना चाहिए। फिर आप कल मुझसे नहीं कहोगे कि आइए और गवाही दीजिए? नहीं, आकिल इंसान अपने लिए मुश्किल खड़ी नहीं करता। अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तमाम खबरें जनाब जूलियस तक पहुंचा दूंगा। हाँ, मगर एक शर्त पर। नहीं बताओगी कि किससे सुना है? मैं आपसे वादा करता हूँ वाली जनाब, वादा। बहुत खूब। यहाँ बात नहीं हो सकती। अपने घोड़े पर बैठो और मेरे पीछे आओ। सिपाही घोड़ा लाओ। सोचते क्या हो, घोड़े पर सवार क्यों नहीं होते? उतर जाओ। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। किस लिए है अली जनाब? शमशीर जरिया है खबर रसानों और जासूसों की गर्दन उड़ाने का। आपका मतलब मैं तो नहीं हूँ? क्या यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा भी कोई और है? अली जनाब, मैं तो रोमियो और हुकूमत दकियानूस का खादिम हूँ। तुम मसीही खुदा परस्तों के दुश्मन और अपने मफादात के खादिम। मैंने देखा है कि तुमने जूलियस से किस तरह शर्फियों की थैली ली है। तलवार उठाओ और अपना दिफा करो। लेकिन मैंने अब तक जनाब जूलियस के अहकाम पर अमल किया है। ठीक है, तो अब जनाब जूलियस से कहो कि आकर तुम्हें बचाएं। नहीं जनाब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मैं भी आपकी तरह खुदा परस्त हूँ, मुझ पर रहम कीजिए मेरे बुजुर्ग। अजब तो यही है, एक यहूदी खुदा परस्त मसीही खुदा परस्त की मदद करने के बजाय रूमी बुत परस्तों की खुशामद में काम करता है। उठ और अपना दिफा कर। उठ जा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सारी उम्र रूमियों की खिदमत की है, मुझे बख्श दीजिए हुजूर। आप अपने खादिमों को इस तरीके से न मारे हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। उठ, वरना मजबूर हो जाऊंगा कि बगैर हथियार के तुझे जहन्नुम रसीद कर दूं। नहीं 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 नहीं, आप मेरे ऊपर रहम करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं अपने मोहसिन पर तलवार नहीं उठा सकता, उससे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मजबूर आदमी हूँ,
میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دیجیے۔ خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھوں رومی بت پرستوں کے قبضے میں گئے۔ چلو چلو آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ آؤ۔ چلو بھیڑو، چلو 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 چلو۔ کدھر گیا یہ؟ ہاں، ارے کدھر جا رہا ہے؟ رک جا بھائی۔ کدھر جا رہا ہے؟ ارے ہم کو کہاں تک لے جائے گا اپنے پیچھے پیچھے؟ رک جا۔ رک جا، ارے رک جا۔ پکڑ لیا، ارے پھر سے نکل گیا، تھکا دیا۔ بھاگ دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا۔ بہت تھکا دیا۔ ابے رک جا۔ یہ تو اسی کا گھوڑا ہے، لگتا ہے وہ پھر سے آیا ہے۔ اس کی باتیں تو سننے لائق ہے، دیکھو خدا سے کیا کہہ رہا ہے۔ الہ، ساری زندگی تجھے بھلا کے بسر کیا ہم نے، پھر بھی تیری رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہا۔ ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہ تھے، پہچانتے بھی نہ تھے۔ تو خواہش کیا کرتے، تمنا کیا کرتے؟ خدایا تو نے ہر خواہش سے پہلے ہر تمنا سے فزوں تر نوازا ہے۔ پالنے والے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں، یہ زمین و آسماں، یہ پہاڑ، یہ دریائے بے کراں، یہ شمس و قمر، شام و سحر، شاخ و شجر، برق و ثمر، یہ آب و ہوا، ابر، گھٹا، فضا، موج صبا، خدایا یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت ہدایت ایک طرف۔ اے ظلمتوں کے گھنگور اندھیروں میں شمع ہدایت جلانے والے، ہم تیرا شکر ادا کریں تو کیسے؟ اے جانوروں کو بھی رزق مدام عطا کرنے والے، تیری انگنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ نکلو ادھر سے، چل بھاگ، جلدی بھاگ، چل۔ رک، میرے ساتھ چل۔ پھر وہی چرواہا
अभी भी मुझसे डरता है। चल मेरे साथ आ जा। हाँ, चल। जल्दी से इसे खत्म करो। तुम आ गए? क्या हुआ उसका? हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो बहुत कुछ जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। मालिक दो जहां, खालिक ज़मीन व आसमां, हम तेरे बंदे आजिज़ व नातवा, कारोबार दुनिया से हैरान व परेशान तेरी बारगाह में फरियाद लेके आए हैं। ऐ वो जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा हमसे करीब है, हर चीज़ तेरे लिए वाज़ेह हो अयां। ये मजलूमों के बदन पर जुल्म व सितम के ताज़ियाने, ये सलीब पे चढ़ते हुए आग में जलते हुए परवाने, तेरे वजूद के परवाने, ये जबर तशद्दुद के जिंदानों में बेगुनाहों की घुटती हुई फरियादें, खुदाया तू सुन रहा है, देख रहा है। कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी गोद वीरान हो गई, खुदाया तू आगाह है। इलाही, ये यतीम बच्चों की मासूम आंखों में डबडबाते हुए आंसू तुझे पुकार रहे हैं। मेरे भाई, तुम कौन हो? आपका बरादर ईमानी, आपका हम मजहब। मेरे मजहब का इल्म तुम्हें कैसे हुआ? आपकी मुनाजात से। कितनी अच्छी मुनाजात करते हैं आप, मैंने कई बार सुना है, वलियों की तरह। ये दूध आपके लिए लाया है, ले लीजिए, भेड़ का है। शुक्रिया आपका। क्या आप एक मुबल्लिग हैं? लेकिन नहीं, आपका लिबास तो शरीफों और दरबारियों की तरह है। आप तो शहरी मालूम होते हैं, नहीं मालूम किस शहर के। इस जगह को कैसे पाया रे जनाब? क्या फर्क पड़ता है, हम सब भाई भाई हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एंथोनी, चरवाहा एंथोनी। अजीब बात है, एक रूमी और चरवाहा। मेरे बाप दादा किसान थे। इडली के खेतों में भेड़ के बच्चों की भारी तादाद की वजह से किसानों की हालत खराब हो गई थी। मेरे बाप दादा भी मजबूर हुए कि यहाँ हिजरत कर जाएं।
यहाँ भी भारी मालियात ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बीघे जमीन जो हमारे पास है, मुश्किल से हमारी सालाना ग़िज़ा हासिल होती है। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं लोगों की भेड़ें चराकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अरे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, ऐसा लगता है ये नाम मैंने कहीं सुना है। हाँ, शहर में। तुम अक्सर शहर जाते हो? नहीं, कभी कभार। तुम मसीही कैसे बने? पहले से था, मेरे माँ बाप भी मसीही थे। ट्राजन के जमाने से, अलबत्ता मसीहियों को सजाएं देने के सिलसिले में ट्राजन के मशहूर फरमान से पहले ही वो लोग मसीही हो चुके थे। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, मैंने कहा नहीं था मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। मेरे ख्याल में ये दकियानूस के एक मुशीर का नाम है, वो भी एक अहम मुशीर। हाँ, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। दकियानूस का मुशीर, एक दरबारी शरीफ ज़ादा, ईसाइयों का दुश्मन, वो भी यहाँ। एक लम्हे के लिए तो मैं भी खुश हो गया था कि मसीहियत दकियानूस के दरबार में और शहर के शरफा तक पहुंच गई है। क्या ये खबर लोगों की खुशी का बायस बनेगी? खुशी से भी बढ़कर लोगों की कुव्वत क़ल्ब और ईसाई मजहब की रौनक का बायस बनती है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं कि आप वो मैक्सिमिलियन हो। लेकिन खैर, आपका लिबास तो शरफा की तरह है। बहरहाल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठहर जाओ। अरे, ये तो अज़रवील यहूदी है। कैसे पता चला कि अज़रकील को कत्ल किया है? उसकी लाश शहर के करीब ही जंगल में मिली है। उसकी आखिरी मामूलियत मैक्सिमिलियन का ताक़ुब था, फिर उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। यकीनन ये मैक्सिमिलियन का काम हो सकता है। नहीं मैथ्यूज, नहीं, मुझे शक है। अगर ये उसका काम होता तो 4 दिन शहर नहीं छोड़ता। उसको मालूम था कि उस पर ज्यादा शक करेंगे। अब किसी और को भी तलाश करना चाहिए। अज़रकील कर सकता था कि मैक्सिमिलियन के चेहरे को बेनकाब करता। यकीनन उसको सबूत मिले थे। अब इसके बाद तुम मैक्सिमिलियन का पीछा करो। हतमन पीछा करूंगा। मेरा ख्याल है कि बानो हेलन भी उनसे मिली हुई है। नहीं, मैं नहीं चाहता बानो हेलन का कोई जिक्र आए, समझे? में शिरकत हमारे दीन की तक़वियत का सबब होगी। मैं कोशिश करूंगी जलसों में शरीक रहूं, लेकिन तौफीक कम हासिल होती है। हाँ गैलेस, बहुत होशियार बनते हो। बच गए गिरफ्तार होते होते। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं पहुंच गया।
मेहरबानी का शुक्रिया नहीं जनाब. अगर आप गैलिस की मदद को नहीं पहुंचते तो उसका क्या हश्र होता? बात वाज़ेह है, जिंदान और शिकंजा. बहरहाल इस वक्त वो यहाँ ना होता, शायद सूली पे चढ़ चुका होता. कोई राह हल सोचिए. मसीहियों के गुरूहों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं. हाँ, मैं जानता हूँ. ऐसे हालात में जनाब मैक्सिमिलियन को शहर नहीं छोड़ना चाहिए था. तुम्हारे मालिक कब वापस आएंगे गैलिस? हुजूर जब वो गार जाते हैं उनकी वापसी का वक्त मालूम नहीं. गार? जी हाँ. वो खुद कहते हैं कि गार में जाता हूँ. कैसा गार और कहाँ ये कोई नहीं जानता. ज़ाहिरन उन्हें पसंद भी नहीं है कि किसी को उस जगह का पता चले. अदनिया शहर के बाहर कब्रिस्तान के तहखानों में एक इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं. क्या जनाब मैक्सिमिलियन की अदम मौजूदगी में आप शिरकत करेंगी? मैं कोशिश करूँगी. आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि महल में एक आदमी का रहना जरूरी है. जब तक कि जनाब मैक्सिमिलियन ना आ जाएं, कुछ तो करना चाहिए. मैं कल अदनिया के पास जाऊंगा और उनसे मशवरा करूंगा. शायद हम मिलकर किसी नतीजे तक पहुंच सकें. मैं भी आपके साथ आऊंगी. ठीक नहीं है. खतरे की सूरत में तुम्हारी हमराही हम सब को बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर सकती है. तो मैं बानू हेलेन के साथ आऊंगी. मैंने अभी तक जाने का फैसला नहीं किया. मैं देखती हूँ कल क्या होता है. मुझे माफ करना इतने नहीं मालूम क्यों तुम्हें हेलन से इस कदर गुस्सा है. काफी है कि तुम उस पर थोड़ी मेहरबानी करो और नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी. काश तुम ऐसी बातें करने के बजाय हेलन के अमाल पर भी कुछ तवज्जो देते. नहीं, ऐसा नहीं है. तुम गलती पर हो और ये नहीं जानती कि मैक्सिमिलियन की फिलाडेल्फिया में मौजूदगी हमारी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है, जबकि खुद तुमको यकीन नहीं है कि वो एक मसीही होगा. सिर्फ तुम्हारे जरिए मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए मसीहियों के कत्लेआम से परहेज करूं. इसकी वजह उसे मुआहिद नहीं कहा जा सकता. मुंह खोल. नहीं बताऊंगा. मुंह खोल और बता एडोनिया कौन. बता उसे कहाँ देखा था. बताऊंगा. बता. मुझे मत जलाओ. बता उसे एडोनिया कौन. बता. वरना तुझे जिंदा जला दूंगा. बता. वरना यूं ही लटका रहेगा. बता एडोनिया कौन. मुंह खोल. नहीं बताऊंगा. बता. एडोनिया कौन. नहीं बोला और बेहोश हो गया. मरियम मुक़द्दस. बताकर अपने आप को छुटकारा पा लेता. कुछ बोला. वो बेहोश हो गया. खोल दो इसे. दूसरा बात. हाथ. चल तू. चल तू. चल चल. तुम इन्हें कुछ नहीं बताना. डरना नहीं. हिम्मत से काम लो. चल हैवान चल. तो अच्छा भुनेगा. मुझे छोड़ दो. मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ. आग को तेज कर दो. तुम इन्हें कुछ मत बताना. ईसा मसीह हम सबके मददगार हैं. बोल. बताता क्यों नहीं. एडोनिया कहाँ है. मैं अभी बताता हूँ. ये वो ज़माना था जब खुदा के मानने वाले जो हुकूमत रूम की जानिब से सख्त दबाव में थे, अपने दीन की तबलीग और मजहबी नशिस्तों को बर्पा करने के लिए
मजबूर थे कि या तो वीरान मकानों में जमा हों या पोशीदा तौर पर अपनी जान पर खेलते हुए शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तानों में अपने मुबल्लिगीन से इलाही पैगाम सुन सकें। हजरत मसीह आपको अपनी पनाह में, कोई आए तो नहीं? मसीह ने फरमाया, वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन के उजालों में कही जाएगी। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया है, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। मौलिम, क्या सचमुच ऐसा होगा? वादे खुदा हक है। बेशक हमेशा जीत सच ही की होती है। आज आप लोग कम हैं, एक कलील सी तादाद जो मजबूरी की बिना पर इस तारीक कब्रिस्तान में जमा हुए हैं। लेकिन मायूस ना हो, एक दिन सारी जमीन पर फैल जाओगे। आज तुम्हें गिरफ्तार करके दरिंदे जानवरों के सामने डाल दिया जाता है, ताकि सितमगर बादशाह और दकियानू से खूंखार तुम्हें तड़पता बिलकता देखकर मस्ती से कहकहे लगाएं और तुम्हारी तकलीफ पर खुशी मनाएं और तुम्हारे आंसुओं से अपने जाम छलकाएं, इस बात से गाफिल कि खुदा तुम्हारा मुहाफिज है और खुदा की नुसरत पहुंचने पर तुम बादशाहों पर हुकूमत करोगे। यह खुदा का वादा है कि गलबा तुम महरूमों का होगा। तुम खुदा की मदद से शहनशाहों को उनके तख्त और ताज से उतार दोगे। आमीन। खुदा की मदद को किसने देखा? कब पहुंचेगी और कब तक मुज़ाहमत की जा सकती है? जब सबको हलाक कर दें, जला दें, टुकड़े टुकड़े कर दें और सूली पर चढ़ा दें। ये बंदों का काम है कि दिल में शम्मे ईमान जलाए रखें, और ये खुदा का काम है कि अगर मसलहत जाने तो अपने वादे पर अमल करें। हो सकता है कि ये वादा इलाही हमारी जिंदगी में पूरा ना हो। गैलिस। जी मालकन, आपने कुछ कहा? गैलिस, ध्यान रखो कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जा ना हो। ए मुअल्लिम, क्या हम सब के सब बहश में यकसा होंगे? अगर यकसा हैं तो ये अदालत से खारिज है, वरना जो छोटा है वो अपने बड़े पर रश्क करेगा। यही सवाल हजरत ईसा से हुआ तो उन्होंने फरमाया, क्या कहते हो उस शख्स के बारे में कि जिसके छोटे और बड़े बच्चे हों और हर एक को उसका मुनासिब लिबास पहनाए? तो क्या कोई छोटा अपने बड़े भाई से बड़े लिबास के लिए हिफाजत करता है? और अगर बच्चों को बड़ों का लिबास पहना भी दें
تو ناراض ہو کے کہے گا مجھے اپنا لباس چاہیے۔ تو دوستو، اسی طرح سے جنت میں بھی ہر ایک کو حسب مراتب مقام ملے گا اور ہر کوئی راضی ہوگا۔ اے معلم، خدا کو کیسے پکاریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ خداوند عالم ہمارے آقا مسیح سے کہتا ہے، اے عیسیٰ، ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں، ایسی حالت میں کہ مال حرام اپنی پگلوں میں دبائے ہوئے ہوں اور گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں قبول کروں گا۔ لیکن بت پرست، فاسق و فاجر، مال حرام کھانے والوں کے لیے میری اجابت لعنت کے سوا کچھ نہیں۔ اے نیکیوں کے معلم، ہم کیسے جانے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو، ہر کوئی اپنے باطن سے آگاہ ہے۔ ایمان خوبیوں کا ایک ایسا درخت ہے جو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تم اپنے وجود کے پھلوں کو پرکھ کے دیکھو، کبھی بھی فاسد درخت خوبیوں کے پھل نہیں دیتا۔ اگر آپ کے درخت وجود میں صداقت و امانت، عفت، محبت، شجاعت اور سب سے بالا تر عشق خدا جیسے میٹھے پھل لگے ہوں تو سمجھ لو ایمان رکھتے ہو۔ ایک آدمی آ رہا ہے۔ عیسیٰ مسیح پر درود و سلام ہو۔ سلامت رہے مسیح کے چاہنے والے۔ جناب ایڈونیا موجود ہیں؟ جی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے، بس گزر جاؤ اور اس سے دل نہ لگاؤ۔ دنیا کی دولت تمہاری آنکھوں کو فریب نہ دے اور اس کی آندھیاں تمہارے شمع ایمان کو بجھا نہ سکے۔ بہرحال یہ دنیا گزر جائے گی اور جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے اعمال ہیں۔ ہوشیار، ہوشیار کہ روز قیامت تمہارے ساتھ گناہوں کے انبار نہ ہو۔ کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں پھر سے زندہ کرے گا؟ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح زندہ ہوگی؟ آخر یہ کس طرح؟ جس طرح سے کہ پہلے تم اس دنیا میں نہ تھے اور تم کو حیات بخشی۔ کیا تم نے خزاں کے بعد موسم بہار میں دوبارہ شگوفوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، ایمان زبان سے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے دل دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔
کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ خاموش، رک جاؤ. ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ کہاں جا رہے تھے؟ عیسائیوں کے اجتماع میں شرکت کرنے کو؟ گرفتار کر لو انہیں.